Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, my dear students, today we are going to learn the subject that is your science and technology. This is your paper 2 of standard 9. We had already started this chapter, that is your chapter number 15, which is your life processes in living organism. हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? We are studying about the life process in what we are seeing in life process in living organism. That is your either plant or in human beings. My dear students, now coming ahead, हम जो ये human being की life process देख रहे हैं. The first important concept which we are studying, that is the human nervous system. In this nervous system, human nervous system, human nervous system is subdivided into three important main parts. The first one is the central nervous system, that we call it as CNS. The second one is your peripheral nervous system, जिसको हम जो है PNS कहते हैं. And the third one is your autonomic nervous system, जिसको हम ANS कहते हैं. Now moving ahead, this central nervous system is subdivided into four main important parts. The first one is the cerebrum, the second one is the cerebellum, the third one is the medulla oblongata, and the fourth one is the spinal cord. This cerebrum is the main important part of the brain. Cerebellum, जिसको मेंदू कहते हैं, छोटा हिस्सा, ये हमारे ब्रेन का जो छोटा हिस्सा होता है, that is the cerebellum, my dear students. Medulla oblongata, जो रेड कलर का बोन जैसा दिखता है, that is your medulla oblongata. And spinal cord is nothing but it is the main important रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं. It is the main important part in the brain. What do you mean by life process? Life processes is nothing but it is the basic process of life include organization, metabolism, responsiveness, movement and reproduction. In humans example में हम लेंगे for example growth, इंसान में growth होती है. Respiration, we take in oxygen and we give out carbon dioxide gas. Digestion, it is one of the very important process. हम जो खाना खाते हैं it get digested और उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है which we required for the continuation of any of the work and movement. And excretion, which is one of the very important part of our life. एक्सक्रिएशन के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है. जितना भी व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली एक्सक्रिएशन? एक्सक्रिएशन इज़ नथिंग बट इट इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी, दैट वी कॉल्ड इट एज एक्सक्रिएशन. एंड दिस वी सी इन द लाइफ प्रोसेस इन विच एंड वी सी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताई थी द ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में. सो व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूमन नर्वस सिस्टम? सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हम ये देखेंगे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. नाउ द फर्स्ट वन इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNS कहते हैं. उसके बाद जो आता है हमारा दैट इज़ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम PNS कहते हैं. एंड लास्टली इट कम्स एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में ये तीन इम्पॉर्टेंट मेन जो है पार्ट है. ये जो ब्रेन का हिस्सा दिख रहा है यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड की ओर तक, जिसको हम CNS कहते हैं, जिसको हम सेंट्रल नर्व बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि इसमें क्या बताया गया है आपको. सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्स्ट वाला हम देखेंगे तो ये क्या कहता है हमें. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ नथिंग, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको जब बता रही थी, आपको कह रही थी कि यहाँ से हमारे ब्रेन के पोजीशन पे आपको जो है क्या दिख रहा है, आपको जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम देखेंगे तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है. So we see that the organization of the brain is extremely delicate and highly evolved. हमारा ब्रेन बहुत ही जो है नाजुक होता है. अगर इस पर ज़रा भी जो है कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ अगर हम इसको मार लगती है, चोट लगती है, तो हम बोलते हैं इसकी याददाश्त हो गई या ब्रेन हैमरेज है या तो फिर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है. सो एवरीथिंग वी सी when accidents happen. So brain is one of the very extremely delicate part of our body. The brain is the main controlling part of the nervous system. सारे पूरे nervous system को body के brain जो है control करता है. brain is one of the very important part and it is safely located. कहाँ पर ये located है, कहाँ पर ये मौजूद है? It is located in the cranial cavity, my dear students.
आगे हम देखेंगे द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टेब्रल कॉलम। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है। इन स्पेस बिटवीन द डेलिकेटेड CNS दैट इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट्स बोनी कवरिंग आर द प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। दिस कैविटी प्रेजेंट्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये कैविटीज कहाँ प्रेजेंट होती है? वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन के हिस्से में, जिसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि वेरेस द लॉन्ग ट्यूबुलर कैविटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड एज द कैनाल कहते हैं। द वेंट्रिकल जो है, सेंट्रल कैनाल एंड स्पेस बिटवीन द मेनिंजेस, ये सारी किससे फिल्ड है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फ्लूइड इन द बॉडी। दिस फ्लूइड क्या करता है? ये सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट टू द CNS को एंड इट प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी ऑफ द शॉक। ये हमारा जो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। हमने किस में देखे थे माय डियर स्टूडेंट? हमने ये पहला हिस्सा जो देखे थे, दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैं आपको बार बार कह रही है ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा। इसके अंदर दिख रहा है ह्यूमन नर्वस सिस्टम बहुत ही अच्छी तरह से। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम को जो है डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में, जिसमें से हम पहला हिस्सा देख रहे हैं दैट इज़ योर CNS। कमिंग अहेड वी आर सीइंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNS भी कहते हैं। ये ऊपर का येलो हिस्सा है जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं। जो नीचे का, जिसको हम मेंदू कहते हैं, छोटा नीचे का हिस्सा है जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं। दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड माय डियर स्टूडेंट, रीढ़ की हड्डी। ये रेड कलर का दिख रहा है, जैसा लग रहा है वर्म है, दैट इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। अब ये ब्राउन कलर का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कन्विकुलेशंस ऑफ द सेरिब्रम। नेक्स्ट, दिस इज द येलो थिंग विच यू आर सीइंग हियर, दैट इज योर पॉन्स। ये रीढ़ की हड्डी है, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। अगेन जो रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये ऐसा लग रहा है कि ये फेदर टाइप जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, दैट इज योर सेरिबेलम। सेम इसमें भी सेरिबेलम यहाँ है, दैट इज़ योर ब्रेन, एंड यहाँ पर भी आपको सेरिबेलम बहुत ही अच्छे से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन से हिस्से को क्या कहते हैं। मूविंग अहेड, यहाँ पर लिखा है द ब्रेन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन वेट अबाउट। ब्रेन ऑफ एन अडल्ट, जो इंसान का जो भेजा होता है उसका वेट कितना होता है? इट इज़ अबाउट 1300 से लेके 1400 ग्राम, दैट इज़ 1300 टू 1400 ग्राम्स। माय डियर स्टूडेंट। ये कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम कहें कि ब्रेन प्ले एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। ब्रेन फंक्शन जो करता है और इसी वजह से आज हम जो है ज़िंदा है। हमें एहसास होता है क्या हमें कह रहे हैं, कोई इंसान जो हमको कुछ, हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो वो क्या हमें उसका रिप्लाई देना चाहिए। एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन, and this nervous control is nothing but it is the system of nerve in our body that send message from controlling movement and feeling between the brain and the other part of the body, जिसको हम nervous control कहते हैं। The left side of our brain control करता है the right side of the body। My dear student, मैं फिर से आपको explain कर रही हूँ। The left side of our brain, हमारा उल्टी बाजू के हिस्से का ब्रेन का कंट्रोल करता है हमारे सीधे बाजू के हिस्से के जिस्म को, और जो राइट साइड सीधे हिस्से के ब्रेन ऑफ अवर ब्रेन कंट्रोल करता है उल्टे बाजू के ऑफ अवर बॉडी को, लेफ्ट साइड ऑफ अवर बॉडी। इट कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ अवर बॉडी। इन एडिशन हम कहेंगे द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है अवर स्पीच। हमारा लेफ्ट साइड किसको कंट्रोल करता है? अपनी स्पीच एंड कन्वर्जेशन, जो हम बातचीत करते हैं, आर राइटिंग, हमारी लिखावट, लॉजिकल थिंकिंग विच वी आर थिंकिंग। वेयर एज द राइट साइड क्या कंट्रोल करता है? आर्टिस्टिक एबिलिटीज़। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो आर्टिस्टिक हैबिट्स होती है, जैसे ड्राइंग होती है, उसके बाद डांसिंग होती है, उसके बाद सिंगिंग होती है, दैट इज योर आर्टिस्टिक एबिलिटीज़। तो ये सारी कौन कंट्रोल करता है? राइट साइड कंट्रोल करता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, नाउ वी आर सीइंग द ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ द CNS। क्या लिखा है? फंक्शन ऑफ द लेफ्ट ब्रेन और फंक्शन ऑफ द राइट ब्रेन। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी, इसको मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ज़रिए से बताना चाहती हूँ कि ये हमें क्या कहता है। सो हमारा लेफ्ट साइड ब्रेन क्या कहता है? मैथ्स विच यू आर सॉल्विंग। और राइट साइड क्या करता है? होलिस्टिक थिंकिंग
इंट्यूशंस, क्रिएटिविटी, आर्ट एंड म्यूज़िक, हमारा जितना भी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती है, जितने भी हमारे में खूबियाँ होती है, काबिलियत होती है, सारा हमारा राइट ब्रेन क्या करता है, फंक्शन करता है. सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द ब्रेन. मूविंग अहेड, अब मैं इसके अंदर जो CNS में पहला हिस्सा बताना चाहती हूँ, दैट इज़ योर सेरिब्रम. इसमें 3 हिस्से आए थे, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा. ये 4 चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताई थी, जिसमें से अभी मैं पहला हिस्सा ले रही हूँ, दैट इज़ योर सेरिब्रम माय डियर स्टूडेंट. सो सेरिब्रम इज़ नथिंग. मैं एक बार फिर से आपको इसका डायग्राम बताना चाहती हूँ. क्या सेरिब्रम, हम जो ये येलो कलर का हिस्सा ले रहे हैं, कौन सा हिस्सा ले रहे हैं, येलो कलर का हिस्सा ले रहे हैं, और इसके बारे में यहाँ पर जो ऊपर का हिस्सा जो है आपको दिख रहा है सेरिब्रम, दिस इज़ योर ब्राउन, उसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको बता रही हूँ. सो दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर. सो ये हमारे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जिसको कंसिस्ट करती है 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है. दिस हेमिस्फीयर जॉइंट होता है विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ टफ फाइबर है एंड नर्व ट्रैक है. इसमें द सेरिब्रम ऑक्यूपाई करता है 2/3 ऑफ द ब्रेन को. इसी वजह से ये लार्ज ब्रेन कहते हैं. हम ये सेरिब्रम को बोलते हैं, ये बहुत बड़ा हमारा ये जो ब्रेन है, इट इज़ द वन ऑफ द लार्ज ब्रेन है. सेरिब्रम इज़ द लार्ज ब्रेन कहते हैं. इट्स सरफेस हैज़ डीप है, इरेगुलर रिजिड्स है एंड ग्रोव विच आर कॉल्ड एज कन्व्यूलेशंस. तो व्हाट डू यू मीन बाय कन्व्यूलेशंस माय डियर स्टूडेंट्स? कन्व्यूलेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ थिंग दैट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू फॉलो. और आगे लिखा है दिस कन्व्यूलेशन इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द सेरिब्रम एंड देयरफॉर, इसी वजह से देखते हैं तो बहुत सारे हमें नर्व सेल दिखाई देते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली नर्व सेल? नर्व सेल इज नथिंग बट इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल दैट रिसीव एंड सेंड मैसेज फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन. जैसे मैं अगर कुछ सवाल आपको कहती हूँ, पूछती हूँ, तो आपके ब्रेन क्या करता है, उस चीज़ को रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता है एंड बैक टू द अगेन बॉडी. और दिस मैसेज आर सेंड बाय द वीक इलेक्ट्रिकल करंट ऑल्सो कॉल्ड, जिसको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं. तो यहीं यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द cerebrum and therefore large number of nerve cell can be accommodated. Next, moving ahead, B part. मैं अब आपको 4 बातें इसमें बताई हूँ ब्रेन में. एक तो सेरिब्रम, नेक्स्ट इज द सेरिबेलम. सेरिबेलम जिसको हम जो मेंदू कहते हैं, नीचे का हिस्सा मेंदू, दैट इज द सेरिबेलम. मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड लास्ट इज द स्पाइनल कॉर्ड, जो टीचर ने आपको बहुत ही अच्छे से इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए से बताना चाहे कि किसको क्या कहते हैं. सो सेरिबेलम किसको कहते हैं? सेरिबेलम इज नथिंग बट इट इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन बड़ा होता है, इसका नीचे का हिस्सा जिसको हम मेंदू कहते हैं, सिचुएटेड बिलो द सेरिब्रम के नीचे सिचुएटेड होता है एट द back of the cranial cavity. Its surface shows shallow groove instead of a deep. Again, it is called as convolution. So, इसका surface shallow grooves. Its surface shows shallow groove instead of a deep convolution. So, convolution is nothing but it is a thing that is complex and difficult to follow. आगे नेक्स्ट जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा. मैं आपको बताई थी डायग्राम में, जो रेड कलर का होता है, वर्म जैसा दिखता है, दैट इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा. सो इट इज़ अ हिंडमोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट इज़ द वेरी हिंडमोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है. देयर आर 2 ट्राइंगुलर सोलर स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, पिरामिड्स कहते हैं. कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द अपर साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा. द मेडुला ऑब्लोंगेटा कंसिस्ट डाउनवर्ड एज द स्पाइनल कॉर्ड. और उतरता है, जैसे हमारा ऊपर का सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, नीचे सेरिबेलम है. सो मेडुला ऑब्लोंगेटा उसके नीचे वर्म जैसा दिख रहा है और वहीं से फिर स्पाइनल कॉर्ड हमारी शुरू होती है. सो इट प्लेस ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यहाँ पर एक अल्फाज भी आया था, होलिस्टिक. होलिस्टिक इज नथिंग बट इट इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रीटमेंट, हम कहेंगे, ऑफ द होल पर्सन, टेकिंग इनटू अकाउंट मेंटल एंड सोशल फैक्टर रेदर देन जस्ट द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज, जिसको हम होलिस्टिक कहते हैं. So moving ahead, now I am just revising you that we had already studied the human nervous system. उसमें हमने 3 पार्ट देखे थे. The human nervous system is divided into 3 parts. The first one is the central nervous system, जिसको हम CNS कहते हैं. Second is the peripheral nervous system, जिसको PNS कहते हैं. And the last is the autonomic nervous system, जिसको हम ANS कहते हैं. जिसमें से मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाई हूँ, that is your central nervous system. इसमें 3 पार्ट है. The first one is the cerebrum,
द नेक्स्ट वन इज़ द सेरिबेलम, द थर्ड वन इज़ द मेडुला ऑब्लांगेटा, और लास्ट जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड बच चुका है वो मैं आपको अगले जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी तब मैं आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ पर मैं अपना लेसन को कंप्लीट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।